हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर आज करेंगे 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी देखा जाए तो संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक और चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is important here, federal system in India. There is an important federal system in India. As you maybe have found, whenever there is the discussions on the nature of structures and process of the political system in India, it is said that India is a federal state. India is a federal state. There are generally two types of state in the world. The state that has only one government for the entire country, and which is known as the United States. The United Kingdoms has a United States system, unitary system here, the United Kingdom, USA. But there is state like the United States of America and Canada, which has a government at a two level, one at the central level and the other at the state level. Besides having two set of government, a federal system must have a three others feature: the written constitutions, division of power between the central government and state government, and supremacy of judiciary to the interrupt the constitution. India also has a federal system having all this feature. And but there is a difference. Let us examine the nature of the Indian federation here. The first point here, characteristics of Indian federal system here. The characteristics of Indian federal system. The first one, two-tier government. Two-tier government mean the must have heard that is there are two set of the government created by Indian Constitution. One for the entire nation is called union government. It means central government, and other for the each unit or state is called state government. Sometimes you may be also find the difference of there are three tiers government of India, because besides the union and state government, local government, both rural and urban, are also said to be constituted among their tier. But constitutionally, India has a two-tier government. The constitution does not be allocated a separate set of power to be local government, as this is continues to be under their respective state government. The next year, division of power. Division of power is also important. Like other federation, both the union and state governments have a constitution state and clearly identify area of activity. The constitution clearly divides the powers between two set of governments, so that the center and the state exercises their power within their respective sphere of activity. Non-volatile is a limit and tied to be encouraged upon the function of the other. The division has been specified in the constitution through three lists: the union list and the state list, and other is a
concurrent list. There is the most important list here of division here. A union list, a state list, and concurrent list. The union list is the consist of 97 subjects of national importance such as defense, railway, and post and telegraph. There is a union list. And the state list here consists of 66 subjects of the local interest such as the public health, police, local self-government, etc. And the next here, concurrent list. Concurrent list is the 47 subjects such as education, electricity, trade union, economical and social plan, etc. There is a most important three state here. Three state list here. First of all here state list, and there is a union list and a concurrent list. Union list is the 97 subject and state list is the 66 subject and concurrent list is the 47 subject. There is subject is a different categories here. The union list is the 97. There is a refer by a defense, railways and post and telegraph. And state list is 66 here, including a public health, police, local self-government. And concurrent list here is an important 47 subject, education, electricity, trade union, economic and social planning. There is a most important three list here. On this list, both the union government and state government have a concurrent adjudications. However, their constitution assign those power on the subjects that are not incriminated under union list, state list, and concurrent list here. So the power known as that is usually power if there is on a doubt about the division of power, it can be resolved by the judications on the basis of the constitutional provision here. The next year, third, written constitution. As we have earlier seen, India has a written constitution, which is a supreme. It is also a source of power for both set of government, the union and state. And this government are independent. There is a sphere of governance. Another feature of the federal is their graded constitutions. Although the Indian constitution is not as right as the USA constitution, it is not a flexible constitution. As I mentioned earlier, it has a unique blend of the rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility, there is an important feature of written constitution. And the next year, independent of judicacy. This is important. Independent of judiciary, there is an important point here. Another every important feature of the federation is there on important judiciary to be interrupt of the constitution and to be maintained. It is a sensitive. The Supreme Court of India has the origin judication to settle a debt between the union and the states. It can declare a law and unconstitutional if it is a contravenance by provision of the constitution. Judiciary also has the powers to be resolved debt between to the union government and the state governments on the constitutional and legal matter related to be a division of power. This is the most important. Important here, next point. The next point here, Indian federal system with a strong center. Indian federal system with a strong center here. In a view of the above provision, the Indian system appears to have all the features of a federal system. But have you done through a statement which said that India is a federal from but a unitary in a spirit? In fact, India is a federal system, has a strong union government, and this was deliberately done in the context of the prevailing situation on the eve of independence and is a view of the social political situation. Apart from the Indian began a vast country of continental dimension. It has diversities and social pluralities. The farmers of constitution believe that we require a federal constitution that would be accommodate a diversity and pluralities. But when India is attained independence, it was faced with the challenges like maintenance, unity and integrated and bearing
about a social, economic, and political change. It was necessary for their center have such a power because India at the time of independence was not only divided into the provinces they created by the British but also had a more than 500 princely state. The princely state that is the most important on this period time. India is divided two part, but here are 500 princely state which had to be integrated into the extended states or new state had to be created. In fact, the central government has been made strong, deliberates beside their concern their unity, their markers of the constitution also is believed that the social economical problem of the country are needed to be handled by a strong center. Government in the cooperation with the state. There is a poverty, literacy, social inequality, and the inequality of the wealth were some of the problem that required infinity of planning and the coordinations. Thus, the concern for unity and development is promoted, the marker of the constitution to create a strong central government. Let's look at the important provision that have created a strong central government. The first article of constitution itself hint of Indian federal system began to different. It states that India shall be a union of state. Now, does the constitution describe India as a federal state? The central government has a sole power of the territory of India. The every extent of a state, including it is the territory, integrated in the hand of the parliament, and the parliament is empowered to form a new state by the separation of territory from any state or by uniting two or more states. It can also other their boundary of any state or even its name. And secondly, it is the division of power is a favor of union government. The union list is a contain all the key subject. Besides, even is a relation to be a concurrent list, the constitution has assigned precedence to be a center over state. In the situation of the confessed between law made on any subject of the concurrent list by a state and also by the parliament. The law made by the parliament would be effective. The parliament may be legislative even on the subject in the state list if the situation demanded that a central government need to legislate, and this may be happen. It is a move. It is ratified by the Rajya Sabha. And third point here, the federal princess is emphasizes as a dual system of court. But in India, we have unfettered integrated judiciary with the Supreme Court at the apex. And fourth point here, the union government become a very powerful when any of three kinds of emergence are proclaimed. The emergence can be turned over federal politics into a high centralized system. The parliament is also assumed the power to make the law on the object and within the jurisdictions of a state. In yet another situation, if there are a disturbance in any state or part thereof, the union government is the empowered by the center force in the state or their deputed a part of the state. This is important. And fifth here, as you will be studying the lesson on governance at the state level, the governor of the state is appointed by the President of India. The union government, this is important here. The state appointed by the President of India, the governor. Governor appointment at state is appointed by the President of India. She has a power to report to the President if there is the constitutional breakdown in the state and recommended their imposition of President's rule. When the President as a rule is imposed on the state counseling minister is dismissed and the governor rules over to state as the representative of their central government. The state legislatures also may be dissolved or kept in their suspended animations. Even in the normal circumstance, the governor has the power to dissolve any bill passed by the
state legislatures for the assent of president. This gives the central government an opportunity to be delay the state regulations and also to be examine such a bill and veto them completely. And the next year, the central government has a very effective financial power and responsibilities. In the first place, items generated to the revenue are under the control of center. The states are mostly dependent on the grant and financial assistance from their central government. Moreover, India has adopted planning as the instrument of the rapid economic progress and development after the independence. And this also has a lead to be considerable centralization of decision making. This is the most important point here. Considerable centralization of decision making here. The next year, finally, according to the constitutional provision, the executive power of the center are superior to those of the state. The central government may be choose to give a instruction to the state government. Moreover, we have on the integrated administrative system. The All India service are common for the entire territory of India, and the officer chosen for their service serve in the administration of their state. Thus, as IS officer who become their collector and IPS is officer who has served the commissioner of police are under control of central government. The state cannot take a disciplinary actions nor can they remove this officer from a service because there is important here. From the above discussions, it is clear that there is a threat in a favor of center at the cost of the state. The states have to work in the close cooperation with the center, and this has led to the support to be contentions that the Indian Constitution is a federal in form, but military is a spirit. Constitutional experts have called it the semi-federal or quasi-federal system. That's important. And the next point here, demand for the great autonomy to state. The working of Indian federals over to the last 6 decades clearly show that the primarily because of centralized federal system. The relation between the center and the state have not always been to the corridors. It is quite natural that the state would be exploit a great role and power in the governance of the state and the country as a whole, which why and from time to time the state have demanded that there should be a give more power and the more autonomy with a view to be seek a solution. The Administrative Reform Commission, Sarkari Commission and the several other commission were appointed by the government of India. The latest began there is a commission on the central state relation in March 2010. The core of important recommendation of various commissions has accepted that there is no need to be worrying about the change in the fundamental fabrics of constitution. However, the need to be have a permanent interstate counseling has been felt. In addition, it is a desire that both the center and the state should be have their concern from the development of backward territory or area. If economical development of this backward region is undertaken in a planning manner, the separate list is a tendency will be automatically controlled. The difference between the union and state should be resolved by the mature constitutional and the view on the demand of the state to provide more financial resources at their disposal has found favor. In order to be improved central state relation in the country, and recommendation has been made for the economical liberalization and suitable amendment to the constitution. This is important here. आगे जो हमारे समक्ष आया है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था होने का प्रावधान है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो विश्व में 2 प्रकार के राज्य होते हैं जो काफ़ी महत्व बनाता है।
लेकिन भारत में संघीय व्यवस्था बनाई गई है। और ये जब इसका निर्माण हुआ भारत का संविधान का, उस समय ये व्यवस्था की गई। और भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, तो देखिए आपको पता होगा, जब भी भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रक्रिया, संरचना और क्रियाओं पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि भारत एक संघीय राज्य है, यानी भारत को एक संघीय राज्य का दर्जा प्राप्त है। और सामान्यतः विश्व में 2 प्रकार के राज्य होते हैं। विश्व में 2 प्रकार के राज्य का प्रावधान है। वो राज्य जहाँ पूरे देश में केवल एक ही सरकार है उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक एकात्मक राज्य है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ऐसे राज्य हैं जहाँ 2 स्तरों पर सरकारें हैं। एक केंद्रीय स्तर पर होता है और दूसरा राज्य स्तर पर होती है, यानी जैसे संघीय इकाई स्तर पर देखा जाता है। अब 2 स्तरों की सरकार की अतिरिक्त संघीय पद्धति की निम्न विशेषताएं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। चलिए विशेषता देखते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत इसका जो होगा लिखित संविधान होगा और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होगा। और तीसरी पॉइंट यही होगा कि संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की स्वच्छता और भारत की संघीय पद्धति में भी ये तीनों विशेषताएं विद्यमान रहेगी। भारतीय संघीय पद्धति की प्रकृति का परीक्षण हम नीचे कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो है भारतीय संघीय पद्धति की विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। हमारे समक्ष जो अगला टॉपिक आया है भारतीय संघीय पद्धति की विशेषता, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संघीय पद्धति की क्या विशेषता थी। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है द्विसोपनीय सरकार। द्विसोपनीय सरकार का अर्थ होता है, और यह आपने सुना भी होगा, कि भारतीय संविधान द्वारा 2 स्तर पर सरकारों की प्रावधान किया गया है। एक सारे देश के लिए होता है जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरा जो होता है इकाई यानी राज्य के लिए होता है जिसे हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। यानी भारत में द्विसोपनीय सरकार की व्यवस्था की गई है। एक केंद्रीय सरकार होती है तो एक राज्य सरकार होती है। कभी कभी आपने भारत में त्रिसोपनीय सरकार की चर्चा सुनी होगी, क्योंकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एक अलग सोपन होता है। किंतु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपनीय सरकार है। स्थानीय सरकार को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं और यह राज्य सरकार के अंदर ही कार्यरत होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है द्विसोपनीय सरकार के अंतर्गत। आगे हमारे समक्ष है शक्तियों का विभाजन। भारत में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है। अन्य संघों की तरह भारत में संघ में केंद्र तथा राज्य सरकारों की संवैधानिक जो है स्थिति प्राप्त है और उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता या न ही दूसरे कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण भी करता है। संविधान में 3 सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये जो होगा संघीय सूची कहलाएगा, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व को जो है 97 विषय है। राष्ट्रीय देखा जाए तो संघीय सूची जो है राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत 97 विषय है, जैसे रक्षा, रेलवे, डाक तथा तार आदि इसके अंतर्गत आता है। अगर राज्य सूची में बात करें तो स्थानीय महत्व को जो है 66 विषय इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें लोक, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय स्वशासन आदि सम्मिलित है। लेकिन समवर्ती सूची में जो है 47 विषय रखे गए हैं, जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम, संघ, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि इसमें महत्वपूर्ण रखता है। यानी समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं, जिसमें शिक्षा, बिजली, श्रम, संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि इसमें प्रावधान है। इस सूची पर जो है केंद्र तथा राज्य सरकार का समवर्ती अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। हालांकि संविधान ने ऐसे विषय को भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार को सौंपन है। ऐसे अधिकारों का अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। यदि शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका जो निपटारा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारण जो है न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाना, ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है
कि भारत एक लिखित संविधान रखता है जो सर्वोच्च है और यह केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के लिए शक्ति का स्रोत है और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने शासन क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अमाननीय नहीं है और यह नमनीय संविधान भी नहीं है और यह अनम्यता तथा नम्यता का अनोखा मिश्रण है। यानी बात यहाँ पर इतनी कही गई है कि भारतीय संविधान जो है ये लचीला है, ये तो न तो अधिक कठोर है और न ही इतना नर्म है। लेकिन अमेरिका के संविधान की बात करें तो ये बहुत ही कठोर है और इसका जो है कोई भी चीज़ को अगर पास आउट करवाना चाहते हो, कोई भी संशोधन करना चाहते हो तो बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। लेकिन भारत में संविधान लचीला होने के कारण समय समय पर जो है बदलाव होती रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है और इसे इसलिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जा सके। भारत में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को जो है असावधानी घोषित कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत का जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। यानी भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है और इसमें हर एक विशेषता जो है पूर्ण रूप से विद्यमान है। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है कि भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है? यानी भारतीय व्यवस्था का जो स्वरूप है संघीय है, लेकिन ये आत्मा एकांत है। यानी देखा जाए तो आत्मा जो है एकांतमय है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत में केंद्र सरकार बहुत ही मजबूत होती है। भारत में देखा जाए तो केंद्र सरकार काफ़ी मजबूत होती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अवस्था तथा सामाजिक राजनीतिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए ऐसा जानबूझ के किया गया है। भारत लगभग एक महाद्वीपीय जैसा विशाल देश है और इसकी विविधता सामाजिक बहुलवाद भी अनोखा देखा गया है। संविधान निर्माताओं का इसलिए विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं को बहुलतावाद को समायोजित कर सके। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाने की बहुत गंभीर चुनौतियां थी उस समय। क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो थी कि देश की एकता बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पर 500 प्रिंसेस स्टेट थे। यानी देखा जाए तो राजाओं का राज्य होते थे और इसकी अखंडता को सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ जो था उस समय था। भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रांतों में तो विभाजित था ही था और इसके अतिरिक्त यहाँ जो है 500 से अधिक राजवाड़े हुआ करते थे, जिन्हें हम प्रिंसेस स्टेट से कहते हैं। इन्हें विभिन्न राज्य को सम्मिलित करना था, नए राज्य बनने में थे। तो इस समय जब देखा जाए, जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सी समस्याएं भी सर खड़ी हुई थी और इन समस्याओं को निपटान करना अत्यंत और दुष्कर्म कार्य था। लेकिन कहते हैं दुष्कर कार्य कर जो है आसान बना देना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बहुत ही कूटनीतियों और समझ की जो है पहचान थी। इसी संदर्भ में जानबूझकर केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया और देश की एकता से संबंधित चिंता के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्य के सहयोग से एक मजबूत केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि देश की एकता से संबंधित चिंता का अतिरिक्त संविधान निर्माताओं से ही भी सोचा कि सामाजिक एवं जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्य के सहयोग से ही मजबूत केंद्रित किया जा सकता है और गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानताएं तथा संपदा की जो है असमानताएं ऐसी समस्या थी जिनके लिए एकीकृत योजना बनाना
और उसे कार्यन्वित करना काफ़ी महत्वपूर्ण था और समयबद्ध जो है स्थापित करना आवश्यक था। और हम नीचे उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा केंद्र सरकार को मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। यदि पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो संविधान का पहला अनुच्छेद ही यह इंगित करता है कि भारतीय संघ व्यवस्था भिन्न है और इन अनुच्छेदों में भारत के संघ और फेडरल नहीं कहा गया है। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का एकात्मक अधिकार है कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार है और राज्य का अस्तित्व तथा देश के क्षेत्रीय अखंडता संसद के हाथों में ही निहित होती है। संसद को किसी भी राज्य कुछ क्षेत्र को अलग कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य को निर्मित करने का अधिकार भी दिया गया है और यह किसी राज्य की सीमा में भी बदलाव ला सकती है तथा किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकती है। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य का जो है सीमाओं का निर्धारित करना और नाम में परिवर्तन करना, ये सारे जो है संसदों को जो है अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में कुछ बचाव के प्रावधान भी किए गए हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के संबंधित राज्य के विधायकों की राय लेना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शक्ति का विभाजन भी केंद्र सरकार के पक्ष में है, यानी शक्तियों का विभाजन भी केंद्र सरकार के पक्ष में है। संघीय सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है और इसके अतिरिक्त समयवर्ती सूची के संबंध में भी संविधान ने केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार से अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई है। यदि समयवर्ती सूची को किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायक द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है और इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत तथा समकालित है तथा इसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में न्यायपालिका जो है सर्वोच्च उच्च होती है, तो ये काफ़ी महत्व भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जब किसी 3 संकटकालीन स्थिति में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। जब किसी 3 संकटकालीन स्थिति में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केंद्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और संकटकालीन स्थिति संघीय व्यवस्था को स्वीकृति एवं केंद्रीय व्यवस्था में बदल सकती है। वैसी स्थिति में राज्य के अधीन विषय पर संसद कानून बना सकती है और इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में या उसके किसी भाग में उपद्रव्य हो तो केंद्र सरकार राज्य में या उसके उपद्रव्यग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बल की तैनात भी कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब 3 संकटकालीन स्थिति पैदा होती है तो केंद्र सरकार जो है बहुत शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि राज्य की शक्ति छीन जाती है और सारी शक्ति जो है केंद्र में निहित हो जाती है। उसके पश्चात आता है, जैसा आप राज्य स्तर का शासन नामक पाठ में पढ़े भी होंगे और जाने भी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। राज्य स्तर का शासन कहते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो ये तो आपको भली भांति समझ होगी कि राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। यदि राज्य में सर्वसाधारण संकट उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को भेजता है तथा अपने प्रतिवेदन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति भी करता है। यानी जब राज्य में जो है आपातकालीन घोषित कर दी जाती है तो वहाँ राज्यपाल के हाथों में सारी शक्तियाँ चली जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति ये कह के वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य के मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी जो मुख्यमंत्री वो क्षेत्र में होता है उसकी सारी पद्धति सारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं कार्यरत हो जाते हैं, यानी कार्य से निलंबित हो जाते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन भी करते हैं और राज्य विधानसभा भंग की भी जा सकती है, यानी निलंबित की भी जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल राज्य विधायक द्वारा पारित किसी भी विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है और इसके द्वारा केंद्र सरकार को राज्य की विधायन प्रक्रिया में देर करने या उससे विधायक अस्वीकार
कर देने का अवसर भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है आया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है केंद्र सरकार को प्रभावशाली वित्तीय अधिकार। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार के पास जो होती है वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर जो होता है केंद्र सरकार के हाथों में ही होता है और इसका उत्तरदायित्व भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले राज्य उत्पन्न करने वाले सभी मद केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, यानी राजस्व उत्पन्न करने वाले सभी मद जो होता है केंद्र सरकार के से निर्मित होता है और राज्य अधिकार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर निर्भर भी करता है। और इसके अतिरिक्त भारत में स्वतंत्रता के बाद योजना को तेज आर्थिक प्रगति एवं विकास के एक साधन के रूप में अपनाया भी गया है और इसके कारण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकरण हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत चीज़ें जो है केंद्र सरकार के हितों में गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 7वां पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनंत संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यकारिणीय अधिकार राज्य के कार्यकारिणीय अधिकारों से श्रेष्ठ है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। केंद्र सरकार के कार्यकारिणीय अधिकारी राज्य कार्यकारिणीय अधिकारी से सर्वश्रेष्ठ है, यानी देखा जाए तो केंद्र सरकार सर्वश्रेष्ठ है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को भी निर्देश देने का अधिकार रखता है। साथ ही भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था भी करने का अधिकार रखता है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के समूचे क्षेत्र के लिए सामान्य हैं तथा इसके तहत चुने हुए पदाधिकारी राज्य के प्रशासन तंत्र में कार्य भी करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार एक आईएएस पदाधिकारी राज्य के अंदर एक कलेक्टर के रूप में कार्य करता है। यानी देखा जाए तो आईएएस जो पदाधिकारी होता है एक राज्य में कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह सभी केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं और राज्य उनके विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक अनुशासन से संबंधित कार्रवाई नहीं कर सकता है, न तो उन्हें पद से मुक्त भी कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आईएएस आईपीएस अफसर होता है तो ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इससे इनको जो है पद से मुक्त करना संभव नहीं है। कहते उपयोग विवरण से ये बात स्पष्ट हो जाता है केंद्र सरकार की स्थिति राज्य सरकार से काफ़ी मजबूत है। यानी केंद्र सरकार जो है हर क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाए रखा है। इसमें राज्य सरकार थोड़ा कमज़ोर होती है। राज्य केंद्र के साथ सहयोग करना पड़ता है। राज्य जो होता है वो केंद्र के साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसको बहुत ही अनुदानों से जो है विमुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान स्वरूप जो है संघीय है, लेकिन इसका आत्मा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बनी हुई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की मांग। यानी राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट हो गया है कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के कारण राज्यों तथा केंद्र के बीच का संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करें। यही कारण है कि समय समय पर राज्य ने इन्हें अधिक अधिकार एवं अधिकार स्वायत्त दिए जाने की मांग भी किया है और इस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सरकारी आयोग तथा अन्य आयोग की नियुक्ति भी की है। मार्च 2010 को केंद्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति सबसे नया प्रयास था और कहते हैं विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार संविधान के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक स्थानीय अंतर जो है राष्ट्रीय परिषद की आवश्यकता महसूस की गई है। और इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को काफ़ी प्राथमिकता देना चाहिए। यानी देखा जाए तो केंद्र तथा राज्य सरकार को ये बात भली भांति समझ होनी चाहिए कि जो क्षेत्र पिछड़े उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया तो ये पृथकवादी सोच स्वतंत्र नियंत्रण हो जाएगी। तो जनरल सी बात है, आज देखिएगा कि एक क्षेत्र जो है काफ़ी विकास करता है, दूसरा क्षेत्र विकास नहीं करता है। तो ये जो है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का ही जो है दो रवैया है, जिसके कारण ये नहीं संभव हो रहा है। आज एक क्षेत्र जो है काफ़ी विकसित होते हैं, दूसरा क्षेत्र जाकर देखिए बहुत ही बेकार होता है। आखिर ऐसा क्यों?
केंद्र व राज्य सरकार के बीच के महाअंतरों को जो है आपसी बातचीत के द्वारा दूर भी किया जाना चाहिए। और जब तक दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में बैठ के बातें नहीं करेगी, बात पूरा स्पष्ट नहीं हो सकेगी। राज्य द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने की मांग को समिति की काफ़ी समर्थन भी मिला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी समझ वाली थी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार की हम भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या भूमिका रहती है, कौन सर्वोच्च है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये विचार को आपने अपने दिमाग से नहीं निकालना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता ही है त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रणीय है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना आपके हित में होगा, ठीक है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।